Hello students and welcome to the third lecture of set theory. In the last class we discussed few problems about the representation of set, that is roster form to set builder form and set builder form to roster form, and we'll also study the types of set. Those are null set. Null set is also called the void set or the empty set. Empty set, null set, void set, एक ही set का तीन ठो अलग अलग नाम है. And we also discuss about the finite set, infinite set, singleton sets. Okay, and what is the cardinal number of a finite set? The cardinal number is nothing but the number of elements present in a finite set is called the cardinal number of that particular set, and it is generally denoted by the A with two vertical bars. A with two vertical bars. Okay, and later we discussed subsets. Okay, so later we discuss subset. So let A and B are two sets. A and B are two sets. If A is a subset, this is a symbol. A is a subset of B. If A is a subset of B, this implies that if X belongs to A, this implies X is belongs to B. A B का सबसेट कब होगा? जब हर एक एलिमेंट ऑफ A का हर एक एलिमेंट वो B में भी होना चाहिए. अगर कोई एक एलिमेंट ऐसे आर्बिट्ररी उठा लो, अपने मन से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो A से, X मान लो इज बिलोंग्स टू A, तो B में भी इट शुड बी बिलोंग्स टू B. द एवरी मेंबर ऑफ A शुड बी द मेंबर ऑफ B ऑल्सो. तो यहाँ इफ A इज ए सबसेट ऑफ B और B इज सुपर सेट ऑफ A अगर B का सबसेट है तो B सुपर सेट है. फिर हम डिस्कस क्या किए थे कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर एक सेट अपना सेट का सबसेट होता है. तो वी कैन से A इज ए सबसेट ऑफ A. इसी डेफिनेशन के हिसाब से ये इफ एंड ओनली वाला चीज है. ठीक है, इफ X इज बिलोंग्स टू A, दिस A, obviously this S is belongs to this A also. So ये सबसेट. मैं ये दोनों साइन के बारे में आपको बताया था, ये साइन और ये साइन. ओके, दिस इज नथिंग, वेरी सिंपल. यू डोंट हैव टू कंफ्यूज अबाउट दिस. And later we discuss null set or the phi set or the empty set is a subset of every set for any A. For any A. ओके, इतना हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे एक पॉइंट और. इफ A कंटेन्स n एलिमेंट्स, इफ A कंटेन्स n elements, if A contain n elements, then the number of subset of A is 2 to the power n. The number of subset of A is 2 to the power n. मान लो सपोज A में there are n elements. A have the n elements, then the number of subset of A, number of subset of A is 2 to the power n, is 2 to the power n. Let us take an example to verify it. Let's say we have a set A which is 1, 2 and 3. There are 3 elements in it, and let us try to list out all the subsets of this 1, 2, 3. Okay, let's try to list out all the subset of this 1, 2, 3. First subsets of A, हम लिस्ट तैयार करेंगे. सबसेट ऑफ A. फर्स्ट phi empty set is सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो पहला हमारा हुआ phi एक सबसेट है, सबका सबसेट है. देन सिंगलटन सेट के बारे में कि 1 सिंगलटन, 2 सिंगलटन, 3 सिंगलटन. सिंगलटन सेट मतलब जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है. तो ये एक सेट है सिंगलटन सेट, व्हिच इज अ सबसेट ऑफ दिस 1, 2, 3. सिंगुलर 2, 3. Okay, these are the 3 singleton set which are the subset of A.
अभी हम डबल वाला सेट देखेंगे, मतलब जिसमें 2 एलिमेंट होंगे। तो फर्स्ट 1 and 2 ये एक सेट है विच इज द सबसेट ऑफ ए 2 3 देन 1 3 ये भी एक सेट है। ये टोटल 1 2 2 3 1 3 ये 3 सेट ऐसे 2 एलिमेंट वाला सेट, और खुद दिस सेट इटसेल्फ। Okay, so count it. Okay, these are the total subsets of A. So total 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are 8 subsets. So इस केस में the number of subsets of A is equals to 2 to the power 3 is equals to 8. 2 to the power 3 is equals to 8. Okay, then तो बात यही है कि अगर A में n 2 एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 2 to the power n। तो यहाँ 3 2 एलिमेंट था तो यहाँ 2 to the 3, अगर यहाँ 4 2 एलिमेंट होता तो here 2 to the 4 which is 16। ओके, गॉट इट। ओके, देन हम सबसेट ऑफ रियल नंबर के बारे में डिस्कस किए थे। रियल नंबर का सबसेट लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि ऑल नेचुरल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर्स, इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो हम नंबर्स के बारे में जितने पढ़ेंगे वो सब रियल नंबर की सबसेट ही होते हैं। तो अभी हम इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यू नो अबाउट द रियल लाइंस, नंबर लाइंस, जो रियल नंबर लाइन है। सो दिस इज सिंपली नंबर लाइंस, इस ये 0 एनीथिंग। ओके, पता है आपको ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ये एक रियल नंबर लाइन है। देखो रियल नंबर लाइन में हम सिर्फ दिखाते हैं 0 1 हम ऐसे शो किए हैं, बट इस नंबर लाइन में 4 भी है, 5 भी है, देयर आर 100 भी, 1000 भी होगा। ओके, एंड -100 -1000 भी होगा। ओके, यहाँ √2 भी होगा, √2 का वैल्यू 1.4 अप्रॉक्सीमेटली 1.41, तो यहाँ भी √2 भी होगा, √3 भी होगा, उसका वैल्यू भी 1.7 समथिंग है। तो ऑल द रेशनल्स, इरेशनल्स, एवरी नंबर इज लाइज इन दिस रियल लाइन। इन दिस रियल लाइन में सब रेशनल, इरेशनल्स, इंटीजर्स सब कुछ है, क्योंकि रेशनल नंबर भी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इंटरवल्स में फर्स्ट हमारा है क्लोज्ड इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स फर्स्ट हम नंबर लाइन में इस केस में जो 2 नंबर है, एक नंबर से A, A इज लेस देन B। अगर A लेस देन B है तो ऑब्वियसली A जो है इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ B। नंबर लाइन का सबसे बेसिक रूल यही है कि सपोज 2 नंबर है, एनी 2 नंबर्स को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे तो जो सबसे छोटा होगा उन दोनों में से जो स्मॉलर वन इज इन द लेफ्ट ऑफ द लार्जर वन। समझ में आ गया? ये 2 नंबर है, y है, x है। इसका नंबर लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि y इज लेस देन x। जो लेफ्ट साइड में है वो स्मॉलर है, जो राइट साइड में है वो लार्जर। दिस इज द बेसिक रूल, मोस्ट फंडामेंटल रूल्स ऑफ द नंबर लाइन। So suppose A is less than B, it means A is lies in the left of the B. A is smaller ones, तो A लेफ्ट में होगा और B जो है वो राइट साइड में होगा। देखो यहाँ सब 0 1 2 3 है। ओके, देखो यहाँ 1.2 भी है कि नहीं, बस हम शो कर रहे हैं 0 1 2 3। यहाँ भी सब कुछ नंबर्स हैं, यहाँ भी सब 0 1 2 3 4 यहाँ कहीं ना कहीं होंगे, बट हमें नहीं चाहिए, अभी हमारा पॉइंट नहीं है, तो सिर्फ हम A और B को दिखाएंगे, शो करेंगे सिर्फ A और B को। जनरली एनी नंबर्स, B इज एनी नंबर्स। अगर A लेस देन B है तो A इज लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द B। तो क्लोज इंटरवल में
ओके, द क्लोज इंटरवल है द सेट ऑफ नंबर्स। क्लोज इंटरवल क्या होगा? द सेट ऑफ नंबर्स विच लाइज इन बिटवीन ए एंड बी, लाइज इन बिटवीन ए एंड बी, और वी कैन से कि x एक एलिमेंट है, द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ x। अगर हम रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक सेट है x such that x is less than equals to b and greater than equals to a, this is a set। और इसी सेट को हम अगर दिखाएंगे ये x is less than equals to a, अगर less than equals सॉरी x is greater than equals to a, तो x a से बड़ा है और greater than equals to है, तो यहाँ एक डार्क बॉल रहता है, डार्क बॉल और डार्क पॉइंट। ओके, एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू बी, इक्वल टू है तो यहाँ भी एक डार्क बॉल रहता है। ओके, एक डार्क पॉइंट इन बिटवीन। देखो x जो है a और इसके बीच में है, तो इसको थोड़ा सा डार्क करोगे, थोड़ा सा बोल्ड करोगे इसको। ओके, सो ये जो इंटरवल्स है, यहाँ देखो बहुत सारे नंबर्स होंगे a और b के बीच में, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स जो a और b के बीच में है, तो वही सेट है क्लोज इंटरवल ए बी। सो बेसिकली जो a, b ऐसे लिखा जाता है, और क्लोज इंटरवल में हमें क्लोज ब्रैकेट, इसको कहा जाता है क्लोज ब्रैकेट, इसको कहा जाता है क्लोज ब्रैकेट। दिस इज ए सेट विच इक्वल टू, इसका रोस्टर फॉर्म है x such that x is lies in between b and a and equals to greater than equals to a and less than equals to b, and x is belongs to real number, so इस ब्रैकेट इसको कहा जाता है a, b दोनों क्लोज ब्रैकेट। ब्रैकेट का बहुत अहमियत है, ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज ब्रैकेट मतलब इंक्लूडिंग, क्लोज ब्रैकेट मतलब इंक्लूड कर रहा है, इस a को भी इंक्लूड करेगा, x कैन बी a, x कैन बी b, ठीक है। मतलब 1,3 इस ब्रैकेट का मतलब यही है कि x का वैल्यू 1 हो सकता है, x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, और 1 और 3 के बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, तो all numbers which lies in between 1 and 3 are also belongs to this set। मतलब यहाँ देखो √2 आएगा, √2 का वैल्यू 1.4 समथिंग, तो √2 also belongs to this set, √3 also belongs to this set, √4 also belongs to this set। ओके, ऐसे बहुत सारे नंबर। सो दिस इज नथिंग बट x such that x is lies in between 3 and 1 and x belongs to real numbers। देखो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते, वी कैन राइट दिस ओनली इन सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिस्ट आउट नहीं कर सकते इनका नंबर्स, मतलब कितने को लिखोगे, मतलब हम 1 लिखिए, फिर 1.0000000001, ये 1 और 1.00001 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आते हैं। ओके, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आते हैं। इस इंटरवल को इस तरीके से लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल्स, दिस इज द क्लोज इंटरवल, और इसका मतलब यही है। देन क्लोज इंटरवल के बाद हम पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इस केस में भी a है वो लेस देन b है। अगर हम नंबर लाइन देखेंगे तो यहाँ आपका a है, यहाँ आपका b है, और इस a ऐसी सेट है, सो दिस इज x such that x is less than b and greater than a and x is belongs to real number, x is belongs to, यहाँ भी x is belongs to real number लिख लो, x is belongs to real number। इस क्वेश्चन डायग्राम इस सबके हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ x इज लेस देन a, लेस देन a मतलब a नहीं हो सकता, x कैन नॉट बी a, x जो है a नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए a में एक ओपन बॉल देंगे। ओपन बॉल मतलब डार्क बॉल, डार्क नहीं होगा, बस बीच में एक होल रहेगा, ठीक है। b में भी एक होल रहेगा ये, और इसके बीच में जितने सारे स्टब्स हैं दोस आर डार्क, बोल्ड होगा, इसको बोल्ड कर दो, और ये रहेंगे ओपन बॉल और होल्स रहेगा इसमें। तो इसी केस में a इज लेस देन x इज लेस देन b। इट कैन नॉट बी, इसको कैसे लिखा जाता है, ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट क्या होता है,
So we can write a comma b as open set, a comma b as open set. ओपन सेट होगा इसका मतलब दो ओपन ब्रैकेट, मतलब मून ब्रैकेट यूज होगा। ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट यूज होता है, ऐसा ब्रैकेट यूज नहीं होगा। इसका मीन्स दिस इज ए सेट x such that x is less than b and greater than a and x is belongs to रियल नंबर, x is belongs to रियल नंबर। एग्जाम्पल अगर देंगे तो 1,3 है, सो दिस इज x such that x is less than 3 greater than 1, x belongs to रियल नंबर, ठीक है। तो वन इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, इसी सेट में वी कैन नॉट डिफाइन द ग्रेटेस्ट नंबर और द लार्जेस्ट नंबर। तो इसी सेट में अगर आप पूछो कि इस सेट में जितने भी नंबर्स हैं आप बताओ कि विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस सेट, इस सेट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो इंटरेस्टिंगली द ग्रेटेस्ट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3 तो इस सेट में है ही नहीं, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है। इसी के क्लोज इंटरवल में पता होगा कि a is belongs to a comma b and b also belongs to a comma b। इसी केस में a is does not belongs to a comma b open interval and as similar b also does not belongs to a comma b open interval। ना a है इस सेट में ना b है, ठीक है। बट a और b के बीच में जितने सारे नंबर्स हैं वो सारे इसी सेट में हैं। यहाँ a भी है b भी है एंड a और b के बीच में जितने सारे नंबर्स हैं वो सब कुछ इसी सेट में है, a कमा b क्लोज इंटरवल में। इंटरेस्टिंगली इसी सेट में द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। आप बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन है, बताओ 3 इसी सेट में है ही नहीं। मैं अगर आपको पूछूंगा व्हिच इज द नंबर, जस्ट राइट नेक्स्ट बिफोर द 3 के पहले कौन सा नंबर आएगा। यहाँ आपका 3 है, इस 3 से पहले कौन सा नंबर आएगा। तो ऑब्वियसली आप पूछोगे तो आप मैं भी बताओगे तो 3 से पहले तो 2 आता है, 3 के जस्ट पहले 3 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, 3 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। अगर ये इंटीजर की बात होती, नेचुरल नंबर की बात होती कि होल नंबर की बात होता तो ये 3 के पहले 2 ही आता है। But when you move on to a continuous type functions that like real numbers में ये सीन है 3 से पहले एग्जैक्टली कौन नंबर आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली कौन नंबर आएगा वी कैन नॉट से इट प्रॉपरली, क्योंकि 3 से पहले आप बताओगे 2.999 है, 2.999 के बाद भी एक नंबर है जो 2.99991 हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हम एग्जैक्टली वी कैन नॉट से विच इज द जस्ट बिफोर द 3, जस्ट आफ्टर द 3 और जस्ट आफ्टर द 1 एज वेल। सो इस टाइप के सेट में द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट numbers in a comma b open interval does not exist okay। we can say कि every number is less than 3, that's fine, every number is greater than 1, that's also fine, but exactly कौन largest है कौन smallest है we cannot say about it। Our next interval is the semi-open or semi-closed interval। Semi-open और semi-close। तो ये इस टाइप के इंटरवल्स होते हैं, a, b कुछ इस तरीके से होंगे और a, b कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। लेफ्ट में भी ओपन, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज और लेफ्ट क्लोज राइट ओपन हो सकता है। इसी केस में भी हर केस में a जो है वो लेस देन b होता है, a इज लेस देन b होता है। तो इसी इंटरवल में फर्स्ट हमें इसको अगर नोट करना हो तो अगर सेट में लिखेंगे a, b
this is a set x such that x is less than equals to b and greater than a. X is less than equals to b and greater than a and the x is belongs to this real number. मतलब a अगर हम नंबर लाइन में देखेंगे इसको तो ये आपका a है, दिस इज योर b. a में सिर्फ लेस देन है तो यहाँ होगा एक ओपन इंटरवल, एक ओपन बॉल और यहाँ होता है एक क्लोज बॉल. यहाँ ओपन बॉल, यहाँ क्लोज बॉल, बीच में डार्क. तो x जो है a से ग्रेटर देन है एंड b से लेस देन है. और we can even say a is does not belongs to this a comma b, okay, and b is belongs to this a comma b, open here close. बस. और a और b के बीच में जितने सारे नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स इसमें है. और अनदर सेट है आपका, ये एक टाइप का सेट है, अनदर सेट है a कॉमा b, यहाँ क्लोज यहाँ ओपन. बट दिस मीन x such that x is greater than equals to a and less than b and x belongs to the set of real numbers. So this means this is a, this is b. a b में ओपन है तो b में एक होल रहेगा, होल. यहाँ डार्क बॉल, बीच में डार्क. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज दिस. एंड वी कैन से here the a is does not belongs to this set, sorry, a is belongs to a में close bracket है, a is belongs to a comma b and b is does not belongs to this a comma b, and all the numbers that is lies in between a and b are lies in between a and b. So that's it about the intervals. ये दो intervals है. फर्स्ट हो क्लोज इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल्स. तो ब्रैकेट के साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कहाँ क्लोज ब्रैकेट मतलब कहाँ आपका स्क्वायर ब्रैकेट और कहाँ मून ब्रैकेट यूज करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नोट कर लो इसको. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली क्या होता है? दिस इज ए सेट ऑफ इमेजिनेशन. हम सिर्फ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट सेट है, हम इमेजिन ही कर सकते हैं इसको. तो इन एनी डिस्कशन ऑफ सेट थ्योरी, इन एनी डिस्कशन ऑफ सेट थ्योरी, it is happen to be a set, that contains all the set under considerations, that contain all set under considerations. कोई भी डिस्कशन हो सेट थ्योरी की, कोई भी एक कंडीशंस हो, कोई भी एक प्रॉब्लम्स हो, एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर उसी प्रॉब्लम होता है और उसी डिस्कशन में एक ऐसी सेट को हम इमेजिन करते हैं और एक ऐसे सेट होता है दैट जो कंटेन ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन. ओके, उसी थ्योरी का हर सेट उसी सेट में होता है. तो दैट इज बेसिकली सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट in that conditions, or that is the superset. first इसको बाद में लिखेंगे. and it is the universal set. इसको हम कहा जाता है, it is called the universal set, denoted by u, capital U, denoted by u से denote किया जाता है universal set. Okay, and this is set is the superset of every set. This set, the universal set, this set
is the superset of every set, superset of every set. ओके, एवरी सेट का, हर सेट का ये सुपरसेट होगा। मतलब कुछ देखो बेसिक डिफरेंट कंडीशन में ये यूनिवर्सल सेट डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट कंडीशंस में सपोज हम एक कंडीशन एनालाइज कर रहे हैं कि क्लास ऑफ द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 11 और सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12 और सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10। इसी केस में हम देखो हर केस में कंसिडर क्या कर रहे हैं, एक स्कूल का, एक पर्टिकुलर स्कूल का, इन ए पर्टिकुलर स्कूल, इन ए पर्टिकुलर स्कूल, एक पर्टिकुलर स्कूल का हम सेट्स ले रहे हैं कि इसी सेट में एक सेट है इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स और कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। बी एक सेट है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 और कैसे एन सी सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 10। एंड इसी केस में एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात हो रहा है। इसी केस में एक यूनिवर्सल सेट ये कंसिडर हो सकता है कि स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, set of collection of all the students or set of all the students in that particular school might be the universal set in this particular case। देखिए हर एक केस वाइज डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट डिस्कशन वाइज ये यूनिवर्सल सेट डिफरेंट हो सकता है। बस यही समझो कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसे सेट होता है which contain all the elements, all the sets, which contain all the sets in that particular cases। एक पर्टिकुलर केस में हर एक सेट का सुपर सेट है, उसमें हर एक सेट होता है, जितने भी एलिमेंट्स हम इमेजिन करते हैं उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ऑल दैट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट सेट। ओके, तो इसी केस में द यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स of the schools might be is the, or we can say is the universal set, is the universal set। so different condition के हिसाब से ये universal set different होता है। ठीक है, then another और एक लास्ट पावर सेट पढ़ेंगे। So we can say कि यूनिवर्सल केस में A is a subset of U for any set A। कोई भी सेट है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट की सबसेट होगा और U is a super set of that particular set for any set A। हर एक के लिए this A is a subset of universal set and universal set is the superset of A। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पावर सेट। पावर सेट let A is a given set, let A is a given set and the collection of all the subsets of A, all the subsets of A is called the power set of A, is called the power set of A and is denoted by P of A। okay, collection of all the subsets of A is the power set of A। हमेशा कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज द पावर सेट ऑफ ए। मान लो फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू है 1 5 7।
ओके 157, तो इसका अगर हम सबसेट देखेंगे तो पावर सेटअप में इसका क्या होगा, सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा, आर 5 एक सबसेट्स है, देन सिंगल्टन 1, सिंगल्टन 5, सिंगल्टन 7, देन 1 5 1 7, then your 1 5 1 7 and 5 7, then 1 5 and 7. So these are the 8 sets. This is the subsets of A. These are the collection of or the list of the subsets of A. इसका collection मतलब the sets of the subset. Subset का फिर set. So this is basically, you can say this P of A, और पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस सेट, एक ऐसे सेट जिसके अंदर भी सेट है, तो पावर सेट ऑफ ए, ओके पावर सेट ऑफ ए एक ऐसी सेट होता है जिसके अंदर भी सेट होता है। पावर सेट ऑफ ए कंटेन सेट, मतलब पावर सेट कंटेन सेट, समझ में आ रहा है? पावर सेट कंटेन सेट, इसे डेफिनेशन वाइज अगर लिखेंगे तो पावर सेट ऑफ ए मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए। सिंपली 2-3 बातें, हमेशा फाई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, ओके, क्योंकि फाई सबका सबसेट होता है, फाई बिलोंग्स टू ए, और यू कैन से इफ एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज एक्स इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अगर x इज ए पावर से x इज ए सबसेट ऑफ ए, x एक सबसेट है, तो अगर a का सबसेट है तो वो एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए होगा, तो इसलिए फाई सबका सबसेट होता है, वी कैन से फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो वी कैन से फाई इज बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, एंड lastly if a also belong, a is a, we can say a is a subset of a is a subset of A, so we can say A also is belongs to power set of A. A also belongs to the power set of A. फिर हम डिस्कस किए थे कि the number of subset of a set is equal to 2 to the power n, where n is the number of elements of A. So if A contains there are n elements, if A contains n elements, then number of subsets is 2 to the power set of A contain the cardinality of power set of A is equals to 2 to the power n, is equals to 2 to the power n. इसको नोट कर लो। Let us discuss the power set of phi. We know the empty set is empty set, we know this is the empty set phi. Then what is the power set of phi? Okay, what is the power set of phi? मतलब ऐसे कौन कौन सेट हैं जो कलेक्शंस ऑफ, ओके दोज आर द कलेक्शंस ऑफ द पावर सेट ऑफ phi. तो इसी सेट में phi की कौन कौन सबसेट है? Who are the subset of phi? Only one person. Who is that? phi is the subset of phi. phi के सिवा और कुछ नहीं है, उसका कोई सबसेट नहीं है, तो p of phi is basically only phi. ठीक है, with a phi, बस इसका सबसेट phi है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देखो ये दोनों सेट में डिफरेंस देखो, जो phi होता है इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट नथिंग होता है, लेकिन p ऑफ phi क्या है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर phi है। इस केस में p ऑफ phi की जो कार्डिनलिटी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1, p ऑफ phi की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो कितना है? 1 है, बट phi की नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 0 है। समझ में आया कि नहीं? phi की नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, तो p ऑफ phi मतलब पावर सेट ऑफ phi एक ऐसी सेट है जिस सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट है। समझ में आ रहा है?
एक ऐसी सेट, ये एक ऐसी सेट है जिस सेट के अंदर फाई है, मतलब जिस सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट है, मतलब इसी सेट में एक ही एलिमेंट है, वो है फाई। इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट है फाई, मतलब एक एम्प्टी सेट है, मतलब एक सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट बोले तो क्या है, एम्प्टी सेट बोले तो एक सेट के अंदर कुछ नहीं है, और पावर सेट ऑफ फाइव मतलब एम्प्टी सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट है, सॉरी एक सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट। तो थोड़ा सा डिफरेंस देखो इन दोनों के बीच में। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉजिकली। देन लेट अस डिस्कस वन मोर थिंग, व्हाट इज पावर सेट ऑफ फाइव। समझ में आया अभी? पावर सेट ऑफ फाइव, पहले ट्राई टू राइट डाउन तो व्हाट इज द पावर सेट ऑफ फाइव। तो पावर सेट ऑफ फाइव तो हम यहाँ लिखे हैं कि पावर सेट ऑफ फाइव जो है एक ऐसी सेट है, ओके, विच कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर एक एम्प्टी सेट, मतलब इसमें बस एक ही एलिमेंट है। तो एक सेट हमें दे दिया है, दिस इज ए सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ध्यान देना, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। इस सेट का कौन कौन सबसेट हो सकता है, वो आर द सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। तो एक तो सेट ऑब्वियसली फाइव एक सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, इसकी अगर सबसेट्स अब सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाइव अगर देखेंगे तो हमेशा एम्प्टी सेट तो है ही है। सबसेट ऑफ पावर, सबसेट ऑफ पी ऑफ फाइव अगर देखेंगे तो इस लिस्ट में एम्प्टी सेट आएगा। ओके, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड खुद यही सेट आएगा। इस सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हमेशा एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। खुद का सबसेट हर लोग होते हैं, ठीक, हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो इसीलिए वी कैन राइट ये भी एक सबसेट। किसका? इसका, ये भी एक सबसेट है। तो पी ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू, बेसिकली हम लिख सकते हैं फाइव एक सबसेट और एक फाइव विद कर्ली ब्रैकेट, ये भी एक सबसेट है। किसका? इसका। तो ये आपका एक सेट, जिस सेट के अंदर दो ठो एलिमेंट है, पहला वाला एलिमेंट है एम्प्टी सेट और एक एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट में एक एम्प्टी सेट, कर्ली ब्रैकेट में एम्प्टी सेट। तो नेसेसरीली जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ऑफ फाइव, पावर सेट ऑफ फाइव की फिर पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली कितना, एक और दो है, देयर आर टू एलिमेंट्स। हमारे ये फॉर्मूला को भी ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज आवर फॉर्मूला, कि हमारा फॉर्मूला क्या था कि फाइव में जीरो एलिमेंट है। ओके, यहाँ फाइव में जीरो एलिमेंट है, तो पी ऑफ फाइव में कितना एलिमेंट होना चाहिए, बेसिकली 2 to the power 0 1। देखो एक ही एलिमेंट है कि नहीं इसमें। सिमिलरली ये एक सेट समझ लो, दिस इज मान लो ये एक सेट है x, और x में कितना ठो एलिमेंट है, एक ठो। अभी पावर सेट ऑफ x में कितना एलिमेंट होगा, 2 to the 1 2। तो पावर सेट ऑफ दिस मतलब पी ऑफ फाइव, ओके, इसी सेट में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 2 to the 1 इक्वल्स टू 2। देखो here there are 2 elements are there। समझ में आ रहा है? ओके, तो आपको अभी धीरे धीरे सोचो, अभी नेक्स्ट स्टेप, अगर आप पी ऑफ फाइव निकालोगे, इसका नंबर ऑफ सबसेट अगर देखोगे, सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखोगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पावर सेट ऑफ फाइव, 3 बार है। तो फाइव में जीरो, तो इसको एक सेट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सपोज वाई सेट में 2 ठो एलिमेंट है, तो पी ऑफ ई क्या, पी ऑफ वाई लिखा है, दिस इज वाई, तो पी ऑफ वाई लिखा है, तो 2 0 2 4 एलिमेंट्स। तो इसके अगर एलिमेंट्स निकालोगे तो देयर आर 4 एलिमेंट्स विल बी देयर। ओके, लेट्स ट्राई टू राइट इट डाउन। देखो इस सेट के सबसेट,
ओके, तो कुछ ही टाइम के लिए इस फाई को एक एलिमेंट, मतलब फाई को ऑब्जेक्ट समझ लो। एक ऑब्जेक्ट, फाई एक सिंबल है, एक सिंबल, सिर्फ एक सिंबल है। तो फर्स्ट इसकी अगर सबसेट लिस्ट आउट करेंगे तो हमेशा फाई एक सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये इसके लिए नहीं लिखे हैं, जैसे फॉर फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। देन ये एक एलिमेंट है, ये सिंबल फाई। ओके, इसका मतलब 1 2 का अगर सबसेट हम लिखेंगे तो पहले फाई लिखेंगे, फिर सिंगल्टन 1 लिखेंगे, फिर सिंगल्टन 2 लिखेंगे, फिर ये खुद सेट को लिख देंगे। ओके, उसी तरह पहले हम फाई लिखे, फिर सिंगल्टन ये लिखो, फिर ये सिंगल्टन, ये सेट तो ऐसा ही है, फिर इसका सिंगल्टन मतलब ये हो गया। बात को समझो, मतलब इसको ऐसे कुछ ही टाइम के लिए समझ लो, ये 1 है, ये 2 है, तो कैसे लिखोगे? फर्स्ट फाई, उसके बाद 1 कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद 2 कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद 1 2 कर्ली ब्रैकेट। समझ में आया कि नहीं? बिंदस, ठीक है। तो दिस इज द पावर सेट ऑफ फाई। ओके, आपको थोड़ा सा सोचो, ध्यान से सोचो तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा आपको। ओके, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जनरली क्या होता है? टू क्लियर पिक्चर। ओके, मतलब कुछ ही टाइम में पिक्चर में थोड़ा सा आप बेटर रियलाइज कर सकते हैं, बेटर आपको विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाउ डज इट सेट लुक लाइक्स, और सेट की जो ऑपरेशन है, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस यू कैन विजुअलाइज बेटर इन द डायग्राम्स। ओके, तो जनरली द वेन डायग्राम फर्स्ट created or first proposed by the mathematician जॉन वेन। इनके नाम से ये वेन डायग्राम्स आया है। ओके, पहले ये आइडिया दिए थे, ये प्रपोज किए थे कि सेट कैन बी रिप्रेजेंट्स इन ए डायग्राम्स, तो उसे इसलिए वेन डायग्राम्स कहा जाता है। तो इन वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है? In a Venn diagram, the universal set represented by a rectangle। हमेशा यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। And the set under considerations, okay, and the sets under considerations is represented by a सर्कल, यूजुअली सर्कल और एलिप्स। मतलब ऐसे सर्कल होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ा सा टेढ़ा हो जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा अगर टेढ़ा हो जाएगा तो ये इलिप्स है। ओके, तुम सुने हो, इसको हम कहते हैं इलिप्स। इसी टाइप के जो सर्कुलर क्लोज फिगर होते हैं इसे हम इलिप्स कहा जाता है, इलिप्स। ओके, जैसे जो हमारा अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ, एक इलिप्स की पाथ में वो घूमता है, दैट इज नॉट इन द सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता है, एलिप्टिकल पाथ में घूमता है। तो इलिप्स एक ये सर्कल मतलब एवरीवेयर सेम। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा तो इलिप्स जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल और एलिप्स। मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो
कि सपोज फर्स्ट कंडीशन से हमारा पहला कंडीशन है कि सपोज ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी मीन्स ए के अंदर बी है, सॉरी बी के अंदर ए है। तो हम फर्स्ट ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। यहाँ ए और बी की डिस्कशन है, तो ए और बी से एक सेट लार्जर देन ए एंड बी, इसे हम कहा जाएगा यूनिवर्सल सेट। ओके, फिर जो बी है वो लार्जर सेट है, बी कंटेंट्स ए, तो ये सपोज अगर आपका बी होगा, बी सेट होगा, तो ए सेट इसका अंदर होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर इस तरह सोचो, दिस इज द यू में जितने सारे पॉइंट्स हैं, दिस आर द सब यूनिवर्सल सेट्स के पॉइंट्स। ओके, एंड इसी क्लोज फिगर के बी एक क्लोज सर्कल में रिप्रेजेंट किया गया है। द एलिमेंट्स आर ऑफ बी आर इन द क्लोज्ड फिगर इन बिटवीन द लार्जर सर्कल। ये इसी सेट के जो एलिमेंट इस बड़ा सर्कल के अंदर हैं, ए की एलिमेंट्स छोटे सर्कल के अंदर है। मतलब okay, दूसरा छोटा सा कंडीशन, लेट ए एंड बी आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है, एंड दे हैव सम कॉमन एलिमेंट, दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स। ओके, सपोज इस केस में कुछ इस प्रकार के डायग्राम होगा, दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर बी। देखो ये छोटा सा कॉमन रीजन है इन दोनों के बीच में, छोटा सा कॉमन रीजन है इन दोनों के बीच में, बट ये ए सेट है, ये बी सेट है, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। यू हर वेन डायग्राम में आप यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना जरूरी होता है। ओके, इट इज कंपल्सरी टू ड्रॉ द यूनिवर्सल सेट। तो ये ए है, देखो ये बी है, और ये जो पार्ट है दिस इज द कॉमन रीजन। तो यहाँ हमें दिया गया था कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल, ए एंड बी आर नॉट इक्वल, इक्वल तो नहीं है दोनों। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में भी let's just write down in this region. Third point, suppose A and B are disjoint set. डिसजॉइंट मतलब हम बाद में थोड़ा सा पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट होता है क्या है। डिसजॉइंट मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। तो इसी टाइप में हम कैसे, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट, दिस इज यू, दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर बी। ए है, दिस इज बी है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन रीजन नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जैसे नंबर्स का ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जैसे सेट का भी कुछ ऑपरेशन होता है। जैसे हमें दो ठो नंबर्स, ओके, ये दो ठो नंबर्स हैं, बीच में एक प्लस ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 होगा, मतलब दो ठो नंबर के ऑपरेशन के बाद एक हमें नया नंबर मिलता है, वी हैव ए न्यू नंबर्स। लाइक दैट हमें सेट की ऑपरेशन के बाद, ओके, वी हैव न्यू सेट्स। तो फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियंस। यूनियंस का मतलब समझते हो, एक हो जाना, ठीक है। यूनियन मतलब एक हो जाना। Let A and B are two set. The union of
A and B, the union of A and B is the set, is the union of A and B is the set of all those elements which are either belongs to A or to B or to both A and B. तो यूनियन जनरली इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, एक ऐसे थोड़ा सा यू टाइप का लिखा जाता है. ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी. दिस इज ए यूनियन, ये सिंबल है यूनियन का, ए यूनियन बी. तो ए एंड बी आर दोनों सेट है. ए यूनियन ऑफ ए एंड बी मतलब उसी सेट, द कलेक्शन ऑफ उसी एलिमेंट, जो एलिमेंट्स आइदर ए में होंगे तो ए यूनियन में होंगे, ए यूनियन बी में होंगे, बी में होंगे तो ए यूनियन बी में होंगे, और अगर ए एंड बी दोनों में है फिर भी ए यूनियन बी में होंगे. तो बेसिकली अगर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ए यूनियन बी मैथमेटिकली इज एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए और एक्स इज बिलोंग्स टू बी. A union B is nothing but X is belongs to A or X is belongs to B. तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे. सपोज A इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 एंड 4 है, B इज इक्वल टू 3 4 एंड 5 है. तो A यूनियन B मतलब जो सेट A में है वो A यूनियन B में है. A में कौन कौन से सेट हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. जो सेट B में है वो भी A यूनियन B में है. तो यहाँ 3 है, 3 तो ऑलरेडी है, 4 भी ऑलरेडी है, तो 5. तो सबको A और B के सारे एलिमेंट को एक ही जगह लिख देना है, बस रिपीट मत करना. तो वो आपका A यूनियन B हो गया, वो आपका A यूनियन B हो गया. तो सिंपली if X is belongs to A, this implies XX belongs to A union B. If X is belongs to B, this implies also X is belongs to A union B. और सिंपली हम कहा जाए तो A is a subset of A union B और B is a subset of A union B. हमेशा A हमेशा सबसेट ऑफ A यूनियन B होगा एंड B भी ऑलवेज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B. Let A1, A2, AN are n to set है ये. So their union is generally denoted by I is equals to 1 to n AI. इसका मतलब यही है कि दिस इज A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN. तो ये AN तक यूनियन, इसका मतलब है तो I इज इक्वल्स टू 1 to n. तो दिस इज A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN. तो इन यूनियन का वेन डायग्राम देखते हैं. A यूनियन B. So this is basically ये सेट A है, ये सेट B है. तो ऐसे एरिया समझो जो A में भी है, A का एरिया A यूनियन B का भी एरिया है, B का भी एरिया A यूनियन B का भी एरिया है. तो दिस इज बेसिकली योर A इंटरसेक्शन B, ए टोटल एरिया. ए टोटल एरिया दिस इज द सेट ऑफ, ये आपका A यूनियन B है, ये जो सेटेड पार्ट टोटल. ओके समझे, A यूनियन B मतलब ये टोटल सेटेड पार्ट.
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शंस, let A and B are two sets, let A and B are two sets, the intersection of A and B is the set of elements which are belongs to both A and B, मतलब इस दोनों में है, उसे हम कहा जाता है इंटरसेक्शंस। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। तो लिखा कैसे जाता है A इंटरसेक्शन B, ऐसे डिनोट किया जाता है A इंटरसेक्शन B, ओके, डिनोटेड as A intersection B, and this A intersection B अगर ऐसे रोस्टर सेट वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो this is X such that X is belongs to A and X is belongs to B। X A में भी होना चाहिए, B में भी होना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल, A is equal to let 1 2 3 and 4 and let's say B is equals to 3 4 and 5, okay, so A intersection B is equals to the common element between them. The common element between A and B is 3 and 4, my dear students. The common element between this elements is 3 and 4, okay, 3 and 4. So basically this is the intersection of A and B. तो अगर हम वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन की बात करेंगे, A इंटरसेक्शन B इस एरिया में आराम से हो जाएगा। ये फर्स्ट A यूनियन B का था, A इंटरसेक्शन B का, मतलब दिस इज A एंड दिस इज द B। थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो कॉमन रीजन कौन सा है, और द कॉमन रीजन बिटवीन A एंड B, ये A का सर्कल है, ये B का सर्कल है, तो इन दोनों सर्कल में जो कॉमन रीजन कौन सा है, दिस इज, तो दिस पर्सन, ये जो पर्सन है, दिस इज बेसिकली A इंटरसेक्शंस B। दिस इज बेसिकली क्या होता है, A इंटरसेक्शंस B होता है। छोटे छोटे प्रॉपर्टीज, दिस A intersection B is a subset of A intersection B is a subset of B as well, and this A intersection B is a subset of A union B also। मतलब A, अगर ये चारों सेट को कंपेयर करोगे, A B A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B, सबसे छोटा होता है A इंटरसेक्शन B, देन A और B, देन सबसे बड़ा होता है A यूनियन B, ठीक है। इफ A1 A2 ऐसे देयर आर n sets, so their intersections is, इंटरसेक्शन ऐसे लिखोगे I is equals to 1 to n, I is equals to 1 to n, A I is nothing but इसका मतलब है, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब यही है कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट 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 इंटरसेक्शन AN। तो ये n2 सेट के कॉमन रीजन को ये दर्शाता है, द कॉमन रीजन बिटवीन A1 A2 A3 A4 एंड AN। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सम मोर ऑपरेशन ऑन द सेट्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।